नमस्कार। आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज़। लखनऊ के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में सोमवार को सैमसंग इनोवेशन कैंपस 2026 के तहत प्रशिक्षण पूरा करने वाले 400 से अधिक विद्यार्थियों के लिए प्रमाण पत्र वितरण समारोह का भव्य आयोजन अटल सभागार में हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने शिरकत की। छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने एआई तकनीकी संबंधी रोजगार के महत्व के साथ राष्ट्र प्रेम पर जोर दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर अजय तनेजा ने वास्तविक शिक्षा और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के विषय पर चर्चा की। सैमसंग इंडिया के सीएसआर हेड शुभम मुखर्जी और ईएससीआई के वाइस प्रेसिडेंट सरोज आप्टे ने बच्चों को एआई के दौर में सैमसंग इनोवेशन कैंपस के महत्व को समझाया। समारोह में कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर शान फातिमा ने प्रशिक्षण में छात्रों के भविष्य के लिए उपयोगी बताया। विशेषज्ञों ने जोर दिया कि शिक्षा और उद्योग के बीच का यह तालमेल नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। समारोह के अंत में उच्च शिक्षा मंत्री ने मेधावी छात्रों को प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम में सर्टिफिकेट पाने वाले छात्रों में चुनिंदा छात्रों ने शिक्षा मंत्री से अपने प्रशिक्षण के अनुभव साझा किए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रुचिता सुजाय चौधरी ने किया। इस अवसर पर अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय के निदेशक डॉक्टर आर.के. त्रिपाठी, संगणक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुमन मिश्रा, डॉक्टर राजकुमार सिंह, कुल सचिव महेश कुमार, परीक्षा नियंत्रक विकास के साथ ही विश्वविद्यालय के शिक्षक व बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित रहे। बंद कराना चाहिए। मैं अब सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रांगण में। मैं वीसी सर से निवेदन करने वाली हूँ आगे। सर विश्वविद्यालय की तरफ से ये मोमेंटो भेंट करते हुए श्री सरोज आप्टे जी को हमारे माननीय कुलपति शॉल सम्मान सहित और मोमेंटो जिसे जब को मिलेगी हमारे विश्वविद्यालय को पुनः याद करेंगे। श्री शुभम मुखर्जी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रांगण में। who is Indian Vice President Samsung. He is also head CSR. Mr. Saroj Apto from
electronic sector, that is Electronic Sector Skill Council of India, who is also holding the post of Vice President in that sector. Esteemed faculty members from Swadesh, especially Dr. Rajiv Nigam, who is President of Social Welfare and Development for Empowered Society, Dr. Nitin Shankarji, Secretary Swadesh. Dear students, ladies and gentlemen, a very warm welcome to this university, that is Khwaja Moinuddin Chishti Language University. It is indeed a matter of great pride for this university to host the Samsung Innovation Campus Certification Ceremony 2026. Our university has always been progressing steadily in the direction of knowledge, science, and innovation. In continuation of this vision, the Department of Computer Science and Engineering, in collaboration with Swadesh Foundation and ESSCI, has successfully conducted this program over the last few months. It started in November 2025. During this period, more than 400 students have actively participated and undergone structured training in emerging technologies such as artificial intelligence and Internet of Things. This initiative has not only enhanced their technical understanding but has also connected them with employment-oriented and skill-based education, which is the need of the hour. In today's rapidly evolving world, the role of universities is no longer limited to awarding degrees. Our responsibility is to prepare students for the future, to make them skilled, adaptable, and capable of contributing meaningful to society. And programs like Samsung Innovation Campus are therefore extremely significant as they bridge the gap between academic learning and industry expectations. Each type of IoT, whether it is in consumer or in commercial or in industrial or in infrastructure, offers unique benefits and applications. I was reading somewhere that the number of connected IoT devices, which was 21.1 billion by the end of 2025, is estimated to reach 39 billion in 2030. Shifting from simple device connectivity to distributed intelligence and autonomous action is the focus area and the need of the day. So, in today's, I would like to place on record, just a minute please. Like to place on record my sincere appreciation for Samsung India, ESSCI, and Swadesh for bringing this valuable initiative in our campus and for their commitment towards youth empowerment and skill development. At this juncture, I would like to specially congratulate Dr. R.K. Tripathi, who is Director, Faculty of Engineering, Dr. Suman Kumar Mishra, the head of the department, and in particular Dr. Shane Fatima, the program convener, for their outstanding efforts in conceptualizing and successfully executing this program. Dr. Rajiv Nigam, the president of Swadesh, and Dr. Shane Fatima visionary approach, the meticulous planning and unwavering dedication have been instrumental in bringing this initiative to fruition. Her commitment towards academic excellence and student development is truly commendable. Please give them a big hand. I would also like to express my heartfelt gratitude to our Honorable Chief Guest Shri Yogendra Upadhyay ji for gracing this occasion. Sir, your presence is great source of encouragement for all of us. और मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ कि जिस जगह से मैं हूँ
उसी विधानसभा से हमारे माननीय मंत्री जी भी आते हैं और उनके लिए कुछ लाइनें हैं। प्रत्येक वर्ग और धर्म एवं हर तबके के समाज के बीच आपकी छवि हमेशा से मिलनसार रही है और जिसकी वजह से आम जनता के बीच आप हमेशा से काफी लोकप्रिय नेता रहे। इज अवर हायर एजुकेशन मिनिस्टर, इन्होंने बहुत काम किया है। ये जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है स्टेट में एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। कई नई यूनिवर्सिटीज हमारे स्टेट में खुलवाई हैं। इसी तरह रैंकिंग एक्रेडिशन में अगर बात करें तो आपके लीडरशिप में, आपके विजनरी अप्रोच से कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनको हम लोग अब टॉप रैंकिंग में देख सकते हैं, जो कि स्टेट यूनिवर्सिटीज है। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इस यूनिवर्सिटी में पधारे और इनका एक पर्सनल अचीवमेंट है, क्योंकि मैं आगरा से हूं इसलिए मैं यहाँ बोल सकता हूँ। हमारा आगरा में हमेशा वाटर क्राइसिस रही है मुगल टाइम से, जब उनके वो कैपिटल होता था। तो गंगा जल लाने की जो एक मुहिम थी वो आपके अंडर, आपके लीडरशिप में पूरी हुई। इसलिए हम लोग आगरा में इनको एक और नाम से भी बोलते हैं और ये आगरा के भागीरथ कहलाते हैं। तो इनके लिए बहुत जोरदार तालियां बजाइए और हम आशा करते हैं कि इसी तरह आपकी मार्गदर्शन में हमारी हायर एजुकेशन तरक्की की राह पे चलेगा और हम एक उत्तम प्रदेश तो बन ही चुके हैं और हम एजुकेशन में भी उत्तम यूनिवर्सिटीज देंगे। डियर स्टूडेंट्स, Samsung Innovation Campus is focused industry aligned skilling program that empowers you all with digital skills and employability, contributing to India's growing tech workforce. अब ये टेक्नोलॉजी या टेक क्या है, इसके लिए मैं कुछ पंक्तियां आप लोग से जो मिलती जुलती है वो कहना चाहूंगा। हर प्रश्न का क्षण में उत्तर, यूं सबको मैं दे सकता हूं, पूरे विश्व को बदल दिया है, हर घर में मैं रहता हूं। कृषि खरीद कला विज्ञान सबकी क्रांति लाता हूं, इस दौर का जनक ही कह लो, मैं टेक्नोलॉजी कहलाता हूं। So as you receive these certificates today, remember this is not just an achievement but a responsibility. The knowledge and skills you have gained here must now be transformed into innovation, into solutions, and into meaningful contributions to the nation. I am confident that this program will inspire you to move forward with confidence and excellence and contribute significantly towards the vision of a skilled and empowered data. With these words, I once again welcome all our esteemed guests and congratulate everyone associated with the successful completion of this program. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir. The stage is all yours. Thank you. Shri Yogendra Upadhyay ji, Honorable Minister of Higher Education, Government of Professor Taneja, Vice Chancellor of the University, Saroj Apto, Vice President ESSCI, professors, and my young friends, Namaste. We are here to celebrate our students and the spirit of innovation that is rapidly transforming both Uttar Pradesh and India. Samsung's journey in India began in 1995, and we are celebrating our 30th anniversary in India this year. It is fitting that so much of our growth and legacy is rooted here in Uttar Pradesh. From our world-class manufacturing plant in Noida to our advanced R&D and design centers in Uttar Pradesh has always been at the core of our business and our vision.
Samsung's Noida plant is one of the world's largest mobile manufacturing units. We are proud to call it home to some of our most significant operations, but our partnership goes far beyond business. Through our flagship CSR initiative, Samsung Innovation Campus, which you are now aware of, we are determined to empower the youth of Uttar Pradesh with future-ready skills. Last year, the program expanded sixfold to train 20,000 students from 10 Indian states. These youngsters are not just learning about artificial intelligence, IoT, big data, and coding. They are building the foundation for the digital future of our country. Beyond technology, we are equally committed to community development. Through our program, Samsung Solve for Tomorrow, we saw that bright young minds from Uttar Pradesh are becoming young change makers. They are using technology to solve wide-ranging issues in their communities, and I implore all of you to join that program as well. Our efforts in CSR have already touched thousands of lives here in Uttar Pradesh, and we are excited to deepen our impact in both skilling and education. Our CSR vision is Together for Tomorrow, Enabling People. It reflects our promise to invest in future tech skills, ensuring equal access to the opportunities shaping tomorrow's world. Samsung Innovation Campus is not just about making youngsters job ready, but about all-round development. And I hope you've gained, from this course in the university as well. Samsung Innovation Campus also includes confidence, employability, and the chance to complete both locally and globally. Samsung's collaboration with the ESSCI means students will have top-tier support, hands-on training, and more importantly, pathways to employment. Let me also congratulate all the students from Uttar Pradesh who have completed the training along with you. Each of you is helping to write the next chapter of growth for Uttar Pradesh and India. I would now like you to give yourselves a big hand. Thank you. मंच पर आसीन ESSCI के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर सरोज आपटो जी, इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर अजय तनेजा जी, CSR हेड सैमसंग श्री शुभम मुखर्जी जी, रजिस्ट्रार इस विश्वविद्यालय के महेश जी, परीक्षा नियंत्रक श्री विकास जी, उच्च शिक्षा के पूर्व उपाध्यक्ष उच्च शिक्षा परिषद के डॉक्टर मुकुल चतुर्वेदी जी, राजीव निगम जी, यहाँ पर बैठे यूनिवर्सिटी की फैकल्टी, छात्र छात्राएं, सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगूंगा कि लेट आया, देर हुई आने में, क्योंकि आज हमारी कैबिनेट की मीटिंग नहीं होती है, हर ट्यूसडे को होती है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज मीटिंग कैबिनेट की ली और कुछ ज्यादा ही प्रस्ताव थे, इसलिए लंबी भी चली। मैंने उस हिसाब से तनेजा जी को समय दिया था कि सोमवार को कुछ सुबह के काम निपटाएंगे, फिर आपके पास आएंगे। मीटिंग लंबी हुई तो मेरी मजबूरी थी, मुझे बैठना था, बैठना चाहिए भी था, इसलिए लेट हुआ। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं।
उम्मीद करता हूं कि आप मेरी मजबूरी को माफ करेंगे। मत चुप करिए, ये वो सब बेवफा लोग हैं जो इनको शील्ड मिल गया शेर से। इनको शील्ड मिल गई शेर से, अगर ये बेवफा होंगे। अभी कुलपति महोदय ने ये बताया कि मैं इनके क्षेत्र से हूं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि बता रहे थे डरा रहे, क्योंकि क्षेत्र का व्यक्ति वोटर होता है, सपोर्टर, हर आदमी प्रभाव रखता है अपना। तो चुपचाप डरा रहे थे कि सावधान रहो, या आपको बता रहे थे? आपको बता रहे थे, कोई बात नहीं। मुझे डरा रहे तो मैं पहले से ही डरता हूं। मित्रों, एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आपके यहाँ पे हुआ है, और वो ज्ञानवर्धन जो हुआ है वो आधुनिकता की ओर आपको ले जा रहा है। पिछले दौरान मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी ने NEP 2020 इस देश को दी, नई शिक्षा पद्धति दी, और उस शिक्षा पद्धति के मूल में क्या था? शिक्षा पद्धति जो NEP 2020 है, बड़ा लंबा चौड़ा उसमें डिटेल है, लेकिन यदि उसका न्यूक्लियस देखें क्या होना चाहिए या है, शिक्षा को संस्कार से जोड़ना, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, शिक्षा को तकनीक से जोड़ना। इन 3 वाक्यों के सरकमफ्रेंस में, परिधि में सब पाठ्यक्रम बनते हैं, कार्यक्रम बनते हैं, और उसी NEP के आगे ले जाने के लिए, उसका अनुसरण करने के लिए एक ये कार्यक्रम सैमसंग ने किया है। सैमसंग इसके लिए बधाई का पात्र। सैमसंग पहले हिंदुस्तान में बिजनेस करने आया, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट है हिंदुस्तान पूरे विश्व का। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उसमें प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी जिसकी हो, ऐसा प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश प्रायोरिटी रहेगा ही। लेकिन जो इन्होंने काम किया इस देश के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए, वो काबिल तारीफ है, और देश को एक दिशा, प्रगति की दिशा में ले जाने के लिए सराहनीय भी। लेकिन सिर्फ व्यवसाय नहीं कर रहे, समाज को प्रगति व्यवसाय से ये खुद कर रहे होंगे, लेकिन समाज के लिए इन कार्यक्रमों से कर रहे। सरकार की योजना है NEP, लेकिन जब सरकार और समाज, यानी सामाजिक कोई भी शक्ति हो सकती है, उसमें इनकी भी एक संस्था है। जब समाज और सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं तो देश तेजी से प्रगति करता है, और यह काम मोदी जी की सरकार में हुआ। तभी आप कल्पना कीजिए 2014 से पहले का भारत। 2014 से पहले भारत क्या था? 11वें और 12वें नंबर पर थी आर्थिक व्यवस्था। और आज 4थे नंबर पर अर्थव्यवस्था आ चुकी है 9 साल के अंदर, 10 साल के अंदर। हमने उस ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया जिसने कभी हम पे हुकूमत की। ये उपलब्धि है हमारी सरकार की, और उसमें सरकार के साथ साथ जब ऐसी संस्थाएं चलती हैं
तो तेजी से गति मिलती है। जैसा मैंने कहा, वो इसका परिणाम है, इतनी तेजी से गति मिल रही है। देखिए, ज्ञान के लिए सभी खिड़की दरवाजे खुले होने चाहिए। कोई ये ना कहे कि हम सिर्फ यहीं से ज्ञान प्राप्त करेंगे, यही हमारे लिए रास्ता है। अगर सब रास्ते नहीं खुलेंगे, सब दरवाजे खिड़की रोशनदान ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं खुलेंगे, तो हम तकिया नकूस बन के रह जाएंगे, सिमट के रह जाएंगे, अपने आप को सिमट लेंगे। और जब सब रास्ते खुलेंगे, तो सैमसंग जैसे आयुर्वेद से आपका ज्ञान वर्धन होगा, ये होगा। शिक्षा ज्ञान बढ़ाती है, शिक्षा संस्कार देती है। जैसा मैंने कहा, कौन सी शिक्षा है जो कि मैं थोड़ा राष्ट्रवाद की बात करना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि कुछ शब्दों से हलचल हुई थी यहाँ, मेरा विषय बदल गया थोड़ा। तो कौन सी शिक्षा है जो वंदे मातरम पर किसी ट्रेन पे लिखा है तो उसे पत्थर मारना सिखा? इन्होंने आपको एआई से संबंध कराया, शिक्षा दी, टेक्नोलॉजी से जोड़ा, टेक्नोलॉजी को कैसे अधिकतर उपयोग किया जाए ये सिखाया। लेकिन वो कौन सी शिक्षा है जो बच्चों को कलम देने के बजाय पत्थर पकड़ाती हो? वो कौन सी शिक्षा है? आप देश की युवा पीढ़ी है, सोचना होगा, तेवर को समझना होगा। तो कौन सी शिक्षा है जो पढ़े लिखे डॉक्टरों को हत्यारा बनाती? उनको जो टेक्नोलॉजी का ज्ञान है, जो विज्ञान का ज्ञान है, उसके लिए हत्याओं के लिए उपयोग करें? ये शिक्षा संस्कार वाली शिक्षा नहीं है मित्रों, संस्कार देने वाली शिक्षा नहीं है। इसलिए तकनीक के साथ यदि संस्कार नहीं जुड़ेगा तो शिक्षा भी विप्लवी हो जाएगी, शिक्षा भी आत्मघाती बन जाएगी। ये मैं बताना चाहता हूं आपको। बात कुछ और करना चाहता था, लेकिन रास्ता बदला है मैंने बात करने का। तो हमको इस देश के लिए काम करना चाहिए और वो शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए जो इस देश का हित करे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। अभी इन्होंने जो काम किया, सर्टिफिकेट बांट रहा था, बच्चों के चेहरे पर एक चमक थी, खुशी थी। सामने बैठे जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उनके चेहरे पे एक परिवर्तन है, खुशी का। अगर मस्जिद है कहीं दूर तो चलो यूं कर चले, किसी रोते हुए व्यक्ति को हंसाया जाए। तो इन्होंने जो इबादत की है आप लोगों को एक नया ज्ञान देकर, यह भी किसी भगवान खुदा की इबादत से कम नहीं कि आपको वो ज्ञान देना जो आपके भविष्य में काम आए, आपके चेहरों को खिला दे। ये है रास्ता शिक्षा का, यह है तालीम का रास्ता। तालीम राष्ट्र विरोधी हरकत करना नहीं सिखाती। तो आप लोगों ने जो शिक्षा ली है, विकसित भारत की ओर ले जाने का जो एक कल्पना करते हैं मेरे नेता मोदी, विकासशील भारत की, विकासशील देशों की श्रेणी में जब उन्होंने सत्ता संभाली थी तो बहुत निचले पायदान पे था, और पिछले 10 साल के अंदर ऊंचले पायदान पे आ चुका है देश। गर्व होना चाहिए, सीना 56 इंची का हमारा होना चाहिए इस बात की।
कैसा परिवर्तन आया, एक मैं घटना सुनाता हूं आपको। कैसा परिवर्तन आया है। मुझे पेरिस भेजा था माननीय योगी जी ने इन्वेस्टर्स को इनवाइट करने के लिए कि आप वहां से जाइए, इन्वेस्टर से बात करिए। उत्तर प्रदेश के कौन सोचता था इससे पहले आर्थिक रूप से मजबूत हो प्रदेश। मैं गया था। मैं जाने से पहले हमारे जीजा जी हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे मैथमेटिक्स में इंदौर यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कहा 20-22 साल पहले वो भी गए होंगे। अरे बोले कहाँ जा रहे हो, वहां पर हिंदुस्तानियों को बड़े हकारत से देखते हैं। मैंने कहा जहां सरकार कहेगी, हमारा बॉस कहेगा, सीएम साहब कहेंगे, हम जाएंगे। गया मैं वहां, बातचीत की इन्वेस्टर से, कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ मुझको। शाम को निकला परफ्यूम खरीदने, फिर इसका परफ्यूम फेमस है। अपने इष्ट मित्र जी मुझसे पूछते कि फिर इससे क्या लाए हो हमारे लिए। मैंने कहा चलो कुछ परचेजिंग कर ले। देखिए, सीखने वाली बात, कहीं से भी सीखना चाहिए। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इंसान। मैं शोरूम में जब एंटर करता हूं, मैं देख रहा था कि मैं फ्रेंच नहीं हूं, लेकिन वहां के लोग जब तक फ्रेंच बोलते हैं, जब तक उन्हें ये ना मालूम पड़ा फ्रेंच नहीं जानते, तब फिर दूसरी भाषा इंग्लिश में बोलते। ये उनके अपने आत्मसम्मान का विषय, आत्मस्वाभिमान का विषय। मैं पहुंचा, उन्होंने कुछ तो सेल्स गर्ल्स थी, इंग्लिश में कुछ कहा, फ्रेंच में कुछ कहा। मैंने कहा मैडम आई डोंट नो फ्रेंच। बोली फ्रॉम वेयर यू आर। तो अपने हिंदुस्तान पे गर्व था। मैंने कहा फ्रॉम इंडिया। बोले ओह यू आर फ्रॉम मोदीज कंट्री, वेलकम वेलकम। ये दिया। बाईस साल पहले का अनुभव, 22 साल पहले का अनुभव मेरे जीजा ने बताया, और आज का अनुभव मैं आपको बता रहा हूं। ये मोदी की देन है इस देश को, आम इंसान की, आम हिंदुस्तानी को देन। हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ाया, हिंदुस्तानियों का सम्मान बढ़ाया। मित्रों, हम भी अपने कर्तव्य से कुछ ऐसा करें कि विकसित भारत का निर्माण में अपना क्या योगदान हो सकता है। जब मेरा नेता कहता है कि 2047 तक देश को विकसित राष्ट्रों की कतार में लाके खड़ा करना, भारत को वहां खड़ा करना, वो विजन बनाते हैं, मिशन बना लेते हैं उसको, और पैशन से जुड़ते हैं, परसेप्शन बदल देते हैं। यह है मोदी। आपका क्या योगदान हो सकता है, आपको सोचना चाहिए। टीचर्स का क्या योगदान हो सकता है, टीचर्स को सोचना चाहिए। हम लोगों का क्या योगदान, जहां भी हम बैठे हैं उनको सोचना चाहिए। यही देश की सेवा है। राष्ट्रभक्ति क्या है? क्या वो जो मोर्चे पे लड़ रहे हैं, इनके इधर उधर से गोलियां निकल रही हैं, वही राष्ट्रभक्त है? ठीक है, हमारे कल को जीवित रखने के लिए वो अपना आज बलिदान करते, अपनी जान पे हथेली पे रखकर -40 डिग्री टेम्परेचर तक वो हमारे लिए खड़े रहते हैं। हमारे लिए वंदनीय है, अभिनंदनीय है, नमनीय है। लेकिन राष्ट्रभक्ति वो है, अगर 2 पंक्तियों में मैं कहना चाहूंगा कि जो जिम्मेदारी समाज ने हमको दी है या समाज से हमने ली है, उसको पूरी ईमानदारी से, समर्पण भाव से और राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर करनी चाहिए। यही राष्ट्रभक्ति। सैमसंग ने आपको शिक्षा दी, इनका काम शिक्षा देना नहीं था, इनका काम व्यवसाय करना है। लेकिन व्यवसाय भी उतने ही तन्मयता से हो रहा है, कर रहे हैं, और समाज को क्या दे सकते हैं उन्होंने दिया। ये है राष्ट्रभक्ति। आपने सीखा, ये भी राष्ट्रभक्ति है।
या आपने उसको कम से कम सीखने के लिए आगे आए, लेकिन सीख कर अपने लिए तो उपयोग कर ही सकते हैं, लेकिन हम देश के लिए इसका क्या उपयोग कर सकते हैं, यह सोचना एक राष्ट्र। मित्रों, मेरे तेवर बदल गए बोलते बोलते और विषय भी बदल दिया, लेकिन आपसे फिर यही कहूंगा कि जो सैमसंग कर रहा है, जो आपको शिक्षा दे रहा है, जो यूनिवर्सिटी आपको शिक्षा दे रही है, उसको देश हित में कैसे जोड़े, इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। धन्यवाद। शिक्षा को रोजगार से जोड़ना शिक्षा का कर्तव्य है, शिक्षा का कार्य है उसे तकनीकी से जोड़ना और साथ ही साथ आज हमने सीखा उसे आचरण से जोड़ना, जिसका सजीव उदाहरण आपने दिया। सर, आपने सैमसंग के CSR इनिशिएटिव की जिस तरीके से सराहना की, सैमसंग की तरफ से आपका बहुत बहुत साधुवाद। और मुझे लगता है कि हमने जिस तरीके से आपने बताया कि 11वें पायदान से हम चौथे पायदान तक पहुंच चुके हैं, ये सच में हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन की वजह से है, जिस वजह से हमारा भारत निरंतर विकास पथ पर अग्रसर है। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम सर के आशीर्वचनों के लिए उनका साधुवाद करते हैं। As we come to the close of this inspiring and memorable ceremony, it is time to reflect with gratitude on a day filled with learning, achievement and collaboration. To formally express our heartfelt appreciation and gratitude, I now invite Mr. Saroja Patoji, Vice President, Strategic Partnership, Sector Skills Council of India, to deliver the formal vote of thanks. Sir, may I? Dignitaries on the dais, Shri Yogendra Upadhyay ji, Honorable Cabinet Minister of Higher Education, Professor Ajay Taneja, Vice Chancellor of PMCU, Mr. Shubham Mukherjee, Head CSR Samsung, and all the faculty members present over here and the students. On behalf of ESSCI, I would like to thank our industry partner Samsung. Samsung has been partnering with us for the last 4 years now, and we are lucky enough to be the 30th, you can say, country worldwide wherein Samsung is deliver this program. Big thanks to Khwaja Moinuddin Chishti University, our academic partner, institution partner. Without the support of the institute and the support of the faculty over here, this program cannot be delivered. So we are very thankful to Khwaja Moinuddin Chishti University. And last not the least, but the students. Students are the biggest partners. Unless until the students partner with us in learning this course that we are delivering across the globe. So Samsung, along with the academic institutions and we ESSCI, we can only deliver this program if the students are the right partners. So very big thanks to all the students who have participated for this program. And once again, I thank Samsung, I thanks Khwaja Moinuddin Chishti, and thanks all the faculty members who are actually the pillar. I think Fatima ma'am and Dr. Rajiv Nigam, who have been very instrumental in this. So I thank all of them. And thanks a lot, students, for your participation, and I wish you all the best. Thanks. Faizan, please be ready. अल्तमास मोहम्मद अशरफ खान और ये सभा फैजल खान, बेटा आप लोग आगे आते जाइए। फैजल खान, नंदिनी शर्मा, अंशी सिंह ठाकर, मोहम्मद आसिफ, अयाज के बाद फैजल खान रेडी रहेंगे। फैजल खान, नंदिनी शर्मा, अंशी सिंह ठाकर, अपने साथियों के लिए हम सभी तालियां बजाते रहेंगे और उनका हौसला देंगे। दीपक गुप्ता, शोएब अंसारी, बेटा बढ़ते रहिए। हसन अहमद,
आगे बढ़ते रहे सनीश कुमार चौरसिया, अलबिया खान, अंशिका उपाध्याय। बेटा आगे बढ़ते रहिए। सनीश कुमार चौरसिया, उसके बाद अलबिया खान, अंशिका उपाध्याय, अक्षत अरोड़ा, शगुन यादव, Thank you everyone.